ندیم رضا کا سلام۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف علی بھٹی، سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھی۔ جو تبدیلی کچھ آئی آج وزارتوں میں، شیخ رشید کو وزارت داخلہ دے دی گئی ہے۔ آصف یہ آصف کیا صورتحال بن رہی ہے؟ یہ تبدیلی اس کابینہ میں آ گئی اور کہیں اور آنی تھی شاید۔ ندیم رضا صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ناظرین کے لیے، یہ تبدیلی مبارک ہو۔ اسی طرح کی تبدیلیاں ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ ہمارے ساتھی جو تھے وہ تھوڑی جلدی میں تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں انقلاب پچھلے سال جس طرح نومبر میں انقلاب آنا تھا، دسمبر میں انقلاب نے باہر نکلنا تھا اور جنوری سے تبدیلی آنی تھی، پھر وہی والی تبدیلی ہمیں نظر آ گئی کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جو کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو کچھ کہا جا رہا تھا، اس کا نتیجہ ایک ایسی طور پہ نکلا ہے حکومتی سطح پہ جو کہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ اور ندیم، اگر آپ دیکھیں تو شیخ رشید جو ہیں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے روایتی سیاستدان ہیں اور روایت سمجھتے ہیں کہ جہاں پر حالات کنٹرول کرنے ہوں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے ان کو وزیر اطلاعات رکھا، اس سے پہلے بھی وہ بہت اہم وزارتوں پہ رہے، تو پہلی مرتبہ وہ وزیر داخلہ بن گئے۔ اور وزارت داخلہ انہیں کیوں دی گئی ہے ندیم، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں دی گئی ہے؟ تو وہی یہی صورتحال ہے جو پی ڈی ایم یا جو استعفے دینے والے لوگ تھے، کیا وہ اب آئیں گے سامنے؟ دوبارہ بولیے گا ذرا، آپ کی جو آواز تھوڑی استعفے دینے کے بڑھ چڑھ کے لوگ استعفے دے رہے تھے مسلم لیگ نون کے، اور ان کی دیکھم دیکھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوئی لوگ اچک رہے تھے، تو اب ایسے کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں تو جو ڈانٹ پڑ چکی ہے آپ کو، آپ کے ندیم، ہم آپس میں پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح کی آصف علی زرداری صاحب نے، جو کہ پی ڈی ایم بننے سے 3 دن پہلے بیمار ہو کے ہاسپٹل چلے گئے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ابھی وہ کچھ دن پہلے نظر آئے ہیں اپنی ماشاءاللہ صاحبزادی کے ان کے جب نکاح کی تقریب میں، بڑے اچھے صحت والے لگ رہے تھے، لیکن دوبارہ وہ ہاسپٹل ہیں، ماشاءاللہ صحت ان کی ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن جس طرح کی انہوں نے صحت ٹھیک کی ہے، جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے استعفے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگائے پیپلز پارٹی کے اراکین نے، اور جو بلاول صاحب کو جس طرح کے انہوں نے جواب دیے ہیں، میرے خیال میں بلاول صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ استعفے والا معاملہ بھائی جان سنبھال کے رکھیں، ابھی بہت جلدی ہے۔ جبکہ محترمہ مریم صاحبہ جو ہیں، جو کہ بہت جلدی میں ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے اور ایک پاکستان میں تبدیلی کی خواہش مند ہیں، وہ پتنی اس کا نام جمہوری تبدیلی رکھا ہے انہوں نے ویسے تو، اور ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہی ہیں۔ تو جس طرح کی ووٹ کی عزت انہوں نے دینے کی کوشش کی اپنے لاہور میں، وہ جو خطاب فرما رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے گھروں پر اٹیکس ہوں گے، ان کے اپنے اراکین جو کہ استعفے نہیں، یہ تو خود آمریت ہے۔ بتا رہا ہوں ندیم بھائی کہ کیا یہ جمہوریت کا کوئی طریقہ ہے، یا جمہوری روایات کے امین اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو استعفیٰ میری بات نہیں سنے گا، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پارٹی کی، تو ان کے گھروں پہ لوگ جو ہے نا وہ اٹیک کریں گے جا کے، تو یہ پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ بھی کس تو طرح۔ آمریت ہے نا، یہ بھی آمریت ہے۔ آپ جس طرح سے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگا رہی ہیں اور جو استعفے نہیں دے گا حملے کریں گے، تو اٹ سیلف یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو اپنی جب پارٹی کے اندر اس طرح سے آپ سیاست کریں گی تو دوسروں پہ کیسے تنقید کر سکیں گی پھر آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے ندیم صاحب، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ مولانا صاحب سب سے آگے ہیں، جن کے پاس اپنی نشست نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب نومبر میں انقلاب پچھلے سال لے کے آئے تھے تو میں نے کچھ کالمز لکھ دیے، کچھ پروگرامز میں کہہ دیا، تو میرے پیچھے پڑ گئے ان کے لوگ۔ تو خیر، ابھی بھی احتیاط برتتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب بہت تیزی میں آگے جا رہے تھے، لیکن اچانک سے انہیں پتہ چلا کہ پھر دونوں پارٹیز نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، کہ وہ استعفوں کے چکر میں تھے، کیونکہ ان کی اپنی سیٹ تو ہے نہیں کوئی، ان کا صاحبزادہ ضرور ہے وہاں پہ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے اراکین ہیں، تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے بس دونوں پارٹیز جو ہے نا ان کو آگے کر کے، وہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کو لیڈر بنا دیا، ان کو آگے لگایا اور خود پیچھے سے سیڑھی کھینچ لی۔ تو آج ہمارے سینئر ناصر بیگ چوتائی صاحب نے ایک تصویر بھی شیئر کی تھی ٹویٹر کے اوپر، کہ جس میں مولانا دیوار کے اوپر تقریباً چڑھنے والے ہیں اور پیچھے سے دونوں سیڑھیاں اٹھا کے جو ہے نا پی ایم ایل یہ این تو اور وہی پیپلز بات پارٹی ہوا بنا نا دی۔ کہ جیسے نومبر پچھلے سال جو انہوں نے ایک چلایا تھا لانگ مارچ کہتا ہے، اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے تھے، تو اس کی انقلاب ایک وہ اس کی ایک سالگرہ منائی جانی تھی،
1 साल पूरा हो रहा था, तो क्या ये वही रेप्लिका, ये 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 उसका वो बड़े रेप्लिका नहीं है? आप बड़े शरारती हैं यार, आप बहुत ही शरारती हैं यार। आप नहीं देखें, तो आपने तो बिल्कुल सालगिरह, आपने तो उसके है। ऊपर ना स्टैंप कर दिया है कि ये बिल्कुल उसका रेप्लिका नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उस पे मजीद उसमें इजाफा ये हुआ है कि जो थोड़ा बहुत एक्सपोज होने से दोनों पार्टीज बच गई थी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने उस वक्त अपना दामन बचा के चुप करके पतली गली से निकल गए थे, और फिर मौलाना ने भी छलांग लगाई उस इनकलाबी कंटेनर से और भाग गए, और लोगों को कहा कि अपने अपने जो है ना वो अमीरों को तलाश करें और पहुंचे अपने अपने शहरों में और वहां पे धरने दें। तो ये उससे पहले काम हो गया कि दोनों पार्टीज इस दफा एक्सपोज हो गई हैं, कि दोनों ने ये कहा कि इस्तीफे होंगे, और पहले 8 दिसंबर की डेडलाइन, फिर 13 दिसंबर की डेडलाइन। तो पता नहीं, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये वाकई सालगिरह मनाने के लिए सारा एहतमाम किया था, और या नहीं, मरियम अच्छा दोस्त थी अच्छा, इसकी या बिलावल दोस्त। मैं समझता हूँ आसिफ, इस सालगिरह का केक जो है वो शेख रशीद के जरिए वो फराहम किया जाएगा। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। देखें, देखें। आप पुराने आप पुराने सहाफी हैं, और आप बात को समझते भी हैं कि शेर रशीद को क्यों लाया गया है। शेर रशीद जो हाँ। हैं वो, आपको अगर याद हो, तो जितनी निगोशिएशंस हो रही थी उस वक्त परवेज मुशर्रफ की और पीपल्स पार्टी की, जो बिहाइंड द सीन डील्स हो रही थी, और जस्ट आपकी नजर, आप उस वक्त जियो में ही थे, तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश होना था वो मुआहदा, जो कि 10 साल का मुआहदा था जनाब नवाज शरीफ साहब का और परवेज मुशर्रफ का, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे लीक किया, और जब हमने खबर दी तो लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये तो कहाँ से जाली डीड हो सकती है, ये असली तो नहीं हो सकता, सिग्नेचर नहीं सही मिल रहे। तो बहुत काम के आदमी हैं, आपको पता है, और जहां उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब बहुत अहम तरीन वजारत समझी जाती है वजारत दाखिला। मैंने खुद तकरीबन 18-20 साल मैंने उसको कवर किया है। तमाम वो अमूर जो कि पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, ख़ास तौर पे जब कोई इक़दाम उठाने होते हैं। आपको रोल याद होगा 2014 में जब धरना आया था इमरान खान का, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे। वो कितने अहम थे, मियाँ साहब को नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है सारा। ही वॉज रनिंग द शो, चौधरी निसार अली खान। और अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं तो फैसल सोलह हयात वज़ीर दाखिला बड़े अहम रहे। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो साबिक गवर्नर सिंध जनरल मोइनुद्दीन हैदर जो है वजीर दाखिला रहे। तो ये जो हम अपने इन अदवार को अगर उठा के देखें, जो कि 96 से ऑनवर्ड जो हमने कवरेजेस की हैं आप और मैंने, उसमें हमें अंदाजा होता है कि ये बहुत ही अहम तरीन मैं समझता हूँ वजारत है। नहीं तो आसिफ आसिफ इसमें इसमें फिर एक चीज सामने आ गई ना, इतने सारे अपने नाम गिनवाए, फैसल सालेह हयात, चौधरी निसार की, मोइनुद्दीन हैदर की। तो इमरान खान ने जो वजीर दाखिला जिन साहब को लगाया हुआ था, तो उस पे उसका यानी कि खिराज अब ये शेख रशीद को ला के अब वो आराम करना चाहते हैं। ये मैं आपको अगर थोड़ी इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। जनाब शाह साहब जो थे वो कुछ अरसे से बीमार थे, और अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब इनकलाब की खबरें आ रही थी, नवंबर वाली जिसकी आप सालगिरह आज मना रहे हैं, तो उस वक्त वो उनके बारे में यह था कि वो बीमार होकर हॉस्पिटल भी चले गए थे और काफी तबीयत उनकी ऐसा ही खराब था। हुई थी। उस वक्त एडवाइस ये की गई खान साहब को कि आप इमीडिएटली इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर तब्दील करेंगे, मिनिस्टर को तब्दील करेंगे, तो शायद इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और आपको याद होगा कि जब ये वजारत में तब्दीली हुई, फवाद चौधरी हटाए गए वजारत इत्तलात से, तो उस वक्त बहुत कवी उम्मीद थी कि कोई ताकतवर आदमी जो है, यानी ब्रिगेडियर शाह साहब से भी कोई ज्यादा ताकतवर आदमी जो है यहाँ पे लगाना चाहिए। अब उस ताकतवर को ताकत वो कहाँ से बारो करता है ये आपको पता है। तो अब मेरे ख्याल में वो उन्हें वाकई आराम की इस वक्त जरूरत थी, और शायद वो उस तरह से इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं रहे थे। इररेलेवेंट मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो हाँ, रेलेवेंट जरूर थे, लेकिन उस तरह से रेलेवेंट नहीं थे। लेकिन शेख रशीद, चूंकि आपको पता है तमाम खबरें, अगर आपको याद हो कि पेशावर के जलसे और कोयटा के जलसे से सारी। पहले जो उन्होंने अंदर की खबरें वो देते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया था कि दिसंबर भी गुजर जाएगा, जनवरी भी गुजर जाएगा और हुकूमत नहीं ऐसा जाएगी, ही है। और आधा दिसंबर तो गुजर गया है। आप देख लें कि हम्म। पहला अशरा जो है मुकम्मल हो गया है, और 10 तारीख को जो है आपको ये मुर्सदा सुनने को मिला है कि इनकलाब की पहली किस्त की सालगिरह जो है वो आपने वसूल कर ली है है। ना, अच्छा वो मैंने कहा ना, मैं अगेन उस पर आता हूँ, ये जो सालगिरह का केक,
جو शेख रशीद के ज़रिए फराहम किया जा रहा है, इसमें मैं ये एक और भी चीज़ पॉइंट है, इसमें पीपल्स पार्टी भी रेस्क्यू होगी, कुछ है पीपल्स पार्टी ने रेस्क्यू होगी। बहुत स्मार्ट प्ले किया, पीपल्स पार्टी इस बहुत, इशू बिल्कुल आपने में सही कहा। है ना, रेस्क्यू हो रही है, क्योंकि इस्तीफे आसिफ जरदारी जिन्होंने इस्तीफे तो इनकी इनकी यानी कि सरजनिश की, उनको टाइट किया कि देखते हैं क्या होता तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे में जो 13 तारीख को जलसा होने जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या असरात इसके मुरतब होंगे? देखिए नदीम साहब, एक बात बड़ी क्लियर है, ये आप और मैं भी समझते हैं, और ये सियासतदान हमारे जो दोस्त साहिबान हैं सारे ये भी समझते हैं कि जलसों से और धरनों से, लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती हैं, ठीक है ना। वो अलग पीएनए की तहरीक की जब लोग जिक्र करते हैं तो वो एक बहुत ही बुरा वक्त था सियासतदानों को। शायद मैं ये नहीं कहता वो इमेच्योर थे उस वक्त, लेकिन कम से कम भुट्टो के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया उसका भुगता नतीजा उन्होंने 11 साल पे। लेकिन अभी उस तरह की इमेच्योरिटी नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन ये जरूर बात है कि आप जलसा आपने करके देख लिया, आपने कहा गुजरांवाला के बाद हुकूमत चली जाएगी, फिर आपने कहा कराची के जलसे के बाद हुकूमत चली जाएगी, फिर आपने कहा कि बस आखिरी छक्का रह गया है वो हम कोयटा में जाके मारेंगे, फिर पेशावर भी गुजर गया, मुल्तान भी गुजर गया, तो लाहौर भी गुजर जाएगा। लाहौर के जलसे पे देखें, मेरी बात सुने, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि जलसा नहीं होगा, और कहाँ पे नहीं होगा, मीनारे पाकिस्तान, तो आप सड़क पे कर लें, मरियम साहिबा कर रही हैं वो सड़क के ऊपर, तो सड़क के ऊपर आप जलसा कर लीजिएगा, वही आप और मैं देखेंगे उसको, और उसकी तकरीरें सुनेंगे वही, और मियां साहब का खिताब भी सुनेंगे। नहीं, इसमें जो थी जैसे वो बात हो रही थी कि वो ब्यूरोक्रेसी की तरह एंक्रोक्रेसी जो है, मरियम उसी पे एम्फसाइज था, उनका जोर था। तो अब उन्हें भी नामुरादी, या वो भी वो किस तरह से उनको देख रहे, वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे उन चीजों को जो पिछले दिनों वो कह रहे थे? उसका जवाब तो उन्हें मिल गया है कि उन्होंने तो दावा किया था कि 8 तारीख को हुकूमत सुन ले कि 8 तारीख को जो फैसले होंगे पीडीएम के उसके बाद उनको घर जाना पड़ेगा, और 13 को आखिरी धक्का होगा। तो वो तो धक्का तो आगे चला गया भाई। आपने तो जो देखें, इस्तीफे तो खत्म होगी कहानी ना, इस्तीफों वाली तो कहानी मैंने अपने कॉलम में भी जिक्र किया था कि इस्तीफों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दूसरा नदीम भाई कि आपने जनवरी एंड पे ले जाके आखिरी हफ्ते में आपने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, तो भाई आपने जो डेडलाइन दी थी दिसंबर की और जनवरी की, वो तो फिर बीच में निकल गई। तो आपने बेसिकली पीपल्स पार्टी को तो रेस्क्यू किया ही किया है, अपनी सियासत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लिया है कि फिर इसका मतलब है कि आप अंदाजों की और आप अपनी माइंड सेट के साथ सियासत करना चाहते हैं। जैसे आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि डिक्टेटरशिप नहीं है, कि आप अपनी मर्जी से समझते हैं। और कल का जो खिताब था मुख्तलिफ चौक चौराहों में मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा का, वाइस प्रेसिडेंट साहिबा का, तो उनका तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इजहार था कि नवाज शरीफ से डर लगता है इमरान खान को, तो पीडीएम का तो जिक्र नहीं हो रहा था वहां पे। हाँ, ये जरूर है कि वो वो क्या कहते हैं, क्राउड पुलर बन गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है लोग जो हैं वो जब कोई नया चेहरा आता है तो उसको जरूर सुनते हैं। लेकिन आप अपनी सियासत के बारे में ये जरूर सोचें कि आप उससे क्या फायदा उठा रहे हैं, क्या आपको फायदा हो रहा है। एंक्रोक्रेसी का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या चंद एंकर्स के जरिए आप तब्दीली ला सकते हैं, या डायनामिक्स आपको बदलने पड़ेंगे। जमीनी हकाइक को आप देखें, पीएमएलएन के वो सीनियर लोग किधर हैं जिन्होंने इस्तीफे देने थे? आपके दाएं और बाएं खड़े हुए थे, साद रफीक खड़े थे, ख्वाजा आसिफ तकरीरें, जोशीली तकरीरें माशाल्लाह कर रहे हैं, मगरिब के वक्त कस्में भी उठा रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन आप इस्तीफे तो उन्होंने नहीं दिए बेचारे। वो चंद एक लोग हैं, पता नहीं कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस्तीफे आपको भिजवाए हैं। तो अननोन आप लीडरशिप जो आप जिसको आप कहते हैं, अच्छा शायद हकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, तो वो फिर किसने इस्तीफे दिए फिर? तो यानी कि वो बात वही है कि सूरत हाल वही है कि 1 साल के बाद ये जहाँ से सफ़र इन्होंने शुरू किया था, तो वापस वहीं खड़े हैं, उससे भी यानी कि बदतर सूरत हाल में ये जा चुके हैं। और अब यानी कि ये बात साबित होती जा रही है कि मरीम नवाज जिस तरह से उनकी हिकमत अमली है, पार्टी को लेके जा रही थी, जो सीनियर हैं, जो राइट और लेफ्ट आपने भी जिक्र किया कि वो खड़े होते थे, वो कहाँ हैं? तो वो भी इस पे यकीन नहीं करते इस्तीफों के ऊपर। वो भी चाहते हैं कि जो पार्लियामानी निज़ाम है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ी जाए और इस्लाहात लाई जाएं। लेकिन ये जो कहीं और लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब सूरत जहां मरियम नवाज ले जाना चाह रही थी वहां तो उससे करीब भी नहीं जाएगी। ऐसा ही आपने सही कहा है कि हम शुरू से ये बात देखें,
बतौर राइटर भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जहाँ तक हमारी एक्सेस होती है बात करने की, हम लोग ये करते रहे हैं कि देखें आपका जो ज़्यादा ध्यान होना चाहिए था वो एक सुप्रीम इदारा है। हमारे बड़ा यकीन है इस जमहूरियत के ऐसा ही ऊपर। है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है वो पार्लियामेंट है। आपने उसको पार्लियामेंट में बेतौकीर कर दिया ना। आपने ऐसा ही है। पार्लियामेंट के अंदर आपने 2.5 साल तक कोई बात नहीं की है, आपने इस तरह की मुहिम साजी नहीं की है, आपने ज़्यादा कोशिश रखी कि जो आपके दोस्त जेलों में बंद हैं उनके लिए आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करवाएं। अगर वो नहीं होते थे तो मैं खुद कवर करता हूँ पार्लियामेंट को, वहां पे सिवाय इसके शोर शराबा मचा के उसके बाद आप इजलास को पॉइंट आउट करके आप निकल जाते थे। तो भाई आपने तो बेवकूफ किया ना पार्लियामेंट को। आप उस पार्लियामान जहां से आपको बारो करनी चाहिए थी ये ताकत, जहां पे आपने डरा के रखा हुआ था बकौल आपके इमरान खान को कि वो दाखिल नहीं हो सकते थे और वो भाग जाते थे, आप उसको अवाम के लिए उस प्लेटफॉर्म को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? अवाम के बस मसाइल के हल के हवाले से क्यों इस्तेमाल नहीं किया? असल चीज आसिफ यही है। बस चले, बस हम उसको समेटते हैं, इस बहस को अपनी ख़त्म करते हैं। और बस एक आखिरी में यही है कि शेख रशीद साहब का सबको इल्म है कि वो कहाँ से बार बार भी कहते हैं कि गेट नंबर 4 से जो आते हैं वो किस तरह से वो करते हैं। अब यानी कि वो टू दी पॉइंट बात करेंगे गालिबन शायद, और इमरान खान को भी अच्छी रिपोर्टें मिलेंगी, और जो कुछ कोई और कहना चाहते थे अब वो बातें इस तरह से आएंगी। ठीक है, मुख्तसरन बस यही बात गेट नंबर 4 से अब दाखिला जो है गेट नंबर 5 में तभी होगा जब पहले आप गेट नंबर 4 पे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, शेख रशीद साहब के पास बराह रास्त रिपोर्टिंग होगी, और वही बराह रास्त रिपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें कह जाते थे, शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब शेख रशीद बहुत क्लोज होंगे क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको इन्फॉर्मेशन ठीक मिलेगी मुल्की सतह की पॉलिसीज के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी और मुख्तलिफ मामलात, और एक्सटर्नल भी, जिसकी हम शायद बाद में डिस्कशन अगर आपके पास जब टाइम होगा, कि इंटरनेशनली जो हमारी इस वक्त एक शिफ्ट है हमारा पॉलिसीज में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ और एक नया ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी शेख रशीद बड़ा कीमती किरदार अदा करेंगे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भैया। बस एक सवाल एक आ गया, वो नाज़रीन वो जो देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक पे, वो कह रहे पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी। वो तुम पहले कह चुके नामुमकिनात में से शामिल है। और नून लीग का मुस्तकबिल क्या है? सवाल नहीं पैदा होता। चले, बहुत नून लीग का मुस्तकबिल सर जी, मुस्तकबिल मरियम साहिबा के हाथ में है, वही इसका जो कुछ करेंगी। चले यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब के पास। फिर बहुत शुक्रिया। फिर हम दोबारा अगली नशिस्त में बात करेंगे ये जो हमारी जो नई सब बंदियां जो हो रही हैं खित्ते में, सऊदी अरब, यूएई, टर्की से जो ताल्लुकात हमारे कहाँ हैं, और चीन के साथ जो एक चीज़ें बीच में आ रही हैं, फिर वो ईरान भी है सारा मामला। तो फिर शेख रशीद के आने के बाद यकीनी सी बात है उसमें ज़रूर तब्दीलियाँ आएंगी। तो और इसके ऊपर भी खैर बातचीत होगी फिर अगली नशिस्त में। बहुत शुक्रिया आसिफ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।